I said assumption. If we have to see the assumption based questions, it is the most important. There are the two types of assumptions. I said one, it is explicit, and another is, I said that explicit, and another is, I said what, implicit. जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब जैसे ही हेडिंग देखते हो, हेडिंग देखकर कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। शायद कई बार ऐसा होता है कि यदि आपको कुछ आइडिया हो उस पैसेज का, उस हेडिंग का, तो अंदर में एक महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, यस ना। और पढ़ने के बाद व्हेन यू आर रीडिंग इट एंड यू आर फाइंडिंग दोज थिंग्स वट एवर यू हैव एज्यूम्ड इन योर माइंड, that is, I said that explicit, and whatever you have assumed it is not there, it is considered, I said that. So these are the assumptions, are those ideas which are hidden behind the, what I said, that words and then passages, yes or not. It is the idea lies behind or hidden behind, I said that, those ideas which is derived from the passage, and it is strongly derived from the passage or hidden behind the what passage, it is known as, what I said, that assumption. It is clear. So I said that it is, I said that it is a strong idea hidden behind the, what I said, that hidden behind passage. A strong idea hidden behind the passage. A strong idea hidden behind the passage is considered an assumption is explicit. It is clear. Generally such ideas are available in the form of, जब passage पढ़ोगे तो they are, ये सोच के पढ़ो कि मुझे therefore देखना है, क्या देखना है, and then या हमें ये देखना है hence और so, क्या देखना है. Generally these three words can give us an idea about what should be the, I said what, assumption, yes or not. आपने कुछ पढ़ा, उसके बाद आप therefore बोल के देखिए, क्या बोल कर देखिए, और जो therefore के बाद जो बोलेंगे, whatever therefore and so, that is, I said that it is the hidden meaning of the passage, yes or not, and a strong hidden meaning of the passage. Is it clear? So how to find out the strong hidden meaning of the passage? आपने बहुत सारा passage पढ़ा, all the passages you have read, या आप 2-3 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आप क्या कर रहे हैं, टेल मी. आफ्टर 2-3 लाइन्स पढ़ने के बाद ही आपको ये फीलिंग आया कि मैं therefore बोलूं, या फर्स्ट लाइन बोलने के बाद ही आपको ऐसी फीलिंग आ रही कि आई कैन से therefore, या थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, जब भी आपको लगे कि मैं therefore बोलना चाहता हूं एंड दैट आई वांट टू से, देन से इट, एंड जो therefore आएगा चांसेस ये होंगे कि वही आपका क्या होगा, strong assumption. And a strong assumption cannot be only one, it can be one or it can be two, yes or not. UPSC has asked such questions where the assumption can be one or two also, yes or not. 3 assumptions will be given. After that 3 assumptions, which of the strong assumptions are based on it? So 1 and 2, 2 and 3, only 3, only 4, like this. Yeah, 2 and 3. इसका मतलब है कि you have to also see like some questions where it is, I said, आपको देखना पड़ेगा 1 और 2. तो कैसे दिखाना, what is the meaning of assumption? Yes, पहले हमें देखना what is the, it is, जब भी आप न्यूज़पेपर, आप ऐसा भी करें, कभी कभी पढ़ने का तरीका ये भी है, आप पहले मेन आइडिया ऑफ द पैसेज जो उसका जो है ना, उसको आप क्या कर लें, क्या करें,
हाइड कर दें इसको, किसको क्या कर दें आप, हेडिंग को हाइड कर दीजिए, पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद अपने आप ही ऊपर वाला जो पढ़ेंगे वो हो जाता है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्या हो जाता है, जो इसके बाद वाला टॉपिक होगा। इसके बाद वाली टॉपिक जो एजम्पशंस के बाद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, आपने सुना होगा व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आई सेड दैट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज फ्रॉम द पैसेज, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस पैसेज। यस और नॉट, ये सारे क्या हैं, जब आप हेडिंग को आप पढ़ने से जो एज्यूम करते हो आप, और वो आपको पैसेज में मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यस टेल मी, एजम्पशन, स्ट्रॉन्ग एजम्पशन, एक्सप्लिसिट एजम्पशन। इट इज क्लियर। और जो नहीं मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम। तो एक बात समझ के चलें कि यदि मेरे पास एक हेडिंग दिया हुआ है, व्हेन वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, हेडिंग दिया हुआ है, इज इट क्लियर, व्हेन अ हेडिंग इज गिवन एंड वी आर रीडिंग, और उसके बाद वी आर रीडिंग द पैसेज, जब हेडिंग पढ़कर आप यू स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या हो सकता है, एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग एंड इट इज देयर, दैट इज अ काइंड ऑफ एजम्पशन। यस और नॉट, यस और नॉट। जो आपको मिल जाए दैट इज स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पशन, एक्सप्लिसिट, एंड नहीं मिले तो इट इज व्हाट आई सेड दैट, इम्प्लिसिट। इट इज क्लियर। एंड इफ आपने पैसेज के पढ़ने के बाद आप एक मेन आइडिया ऑफ द पैसेज निकालते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एजम्पशन बेस्ड के ऊपर बात करेंगे। सो अगेन आई एम कमिंग, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एजम्पशन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इट इज क्लियर। एक्सप्लिसिट जो पैसेज होंगे, एक्सप्लिसिट जो एजम्पशन होगा, यू कैन बी एबल टू फाइंड, आई सेड दैट विद द हेल्प ऑफ देयरफॉर, with the help of hence and with the help of yes or no, so जब भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते एक फीलिंग आए therefore, और therefore कब बोलते हो, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, yes or not, yes or not। और किसी प्रोग्राम को, मैंने बोला रूरल डेवलपमेंट, द इंडिया हैज स्टार्टेड द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, so many rural development program in India, and then thereafter in 2004 2006 onward there is an integrated rural development program has been started. Therefore the rural development in India will be on the right path, especially in the agriculture and all that. तो therefore एक हमें एक feeling आएगी, yes or not, therefore it is a strong feeling which is hidden behind the what, passage, yes or not, a strong feeling hidden behind the passage. Got to know what is assumption, yes or not, it is a strong feeling which is hidden behind the passage. It is clear to you। और वो कैसे डिटरमाइन करेंगे ये, अब ये तो हम लोग पैसेज पढ़ते समय करेंगे, इज इट क्लियर। लेकिन व्हेन वी विल कम एंड रीड द ऑप्शन, तो नेक्स्ट पॉइंट आई सेड, इम्प्लिसिट पढ़ना है क्या, इम्प्लिसिट तो वो है जो कि नहीं है, वीक है, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट हमें ये देखना है कि थ्रू ऑप्शन कैसे हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन में अगेन आई सेड दैट, कल वाली बात आप सारी लास्ट क्लासेस वाली बात आपको यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट क्या है, आई सेड दैट falsifiability, what did I say that, जो ऑप्शन यदि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, आउट ऑफ उसको आप निकाल दें, ऐसा ना, जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मिस पैसेज, अगेन यू हैव टू बी फील लाइक आई सेड दैट हॉर्स, एंड जो आउट ऑफ द पैसेज हो यू हैव टू, व्हाट इज इट, आई सेड दैट रिमूव इट। तो आपने रिमूव किया, एंड देयर आफ्टर जो बचे हुए पैसेज, और आउट ऑफ द, साथ साथ में एक और चीज बोला था, पूरी ध्यान से देखना, जहां पे भी देखे ऑल, एनी, यस, ऑलवेज, नेवर, none, nothing, only, absolutely, these are the words which is I said that, which is, कई ऐसे वर्ड हैं जो कि पूरी 100% पॉजिटिव बोलते हैं या 100%, तो वो वर्ड से हमें क्या करना है, बचना है, या साना, इज इट क्लियर। सो फॉल्सिफिएबिलिटी एंड ये, अंडरस्टूड इट, इट इज क्लियर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्सिफिएबिलिटी, ये कल के लास्ट क्लास के टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हेन वी आर स्टडिंग द ऑप्शन देन वी शुड बी, जो भी पैसेज के आउटसाइड ऑफ द कंटेक्स्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे। अनदर ऑल, एनी, ऑलवेज एंड नेवर एंड नन के ऊपर ध्यान देंगे। इज इट क्लियर? अनदर आई सेड दैट आपको ये देना है, जब आप फॉल्सिफिबिलिटी इस सब बेसिस पे काट लिया और कुछ की फीलिंग आ रही है कि ये क्या है, एजम्पशन है, यस है ना, तो हमें पता चला चाहे दो एजम्पशंस फीलिंग हो रही है, वी हैव एन फीलिंग, उसमें से कौन राइट हो सकता है। आप दोनों को क्या करें, निगेटिव पढ़ें। क्या पढ़ें? यदि मैंने सपोज करो पूरे पैसेज पढ़ने के बाद बोला देयरफॉर इट शुड बी लाइक दिस, देयरफॉर इट शुड बी, और वो ऐसा ही चीज मुझे मिल रहा है पैसेज में, तो वो स्ट्रांग हो गया। एंड उसी को मैं निगेटिव पढ़ूंगा, इट शुड नॉट लाइक दिस, तो वो इट शुड नॉट लाइक दिस क्या दिखेगा पैसेज में, कैसा दिखेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा। अरे मैं जो बात कर रहा हूं इसमें तो है ही नहीं। यदि आप किसी ऑप्शन को ए बी सी डी में निगेटिव करके पढ़ो, रीड इट निगेटिव, और वो दिखे पूरे पैसेज के अपोजिट हो गया, 100% उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और यदि आपने उसको निगेटिव किया लेकिन फिर भी कुछ फीलिंग आ रही है, तो वो उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एजम्पशन स्ट्रांग नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, यदि वो एजम्पशन है तो 100% स्ट्रांग फीलिंग देगा, और जैसे ही निगेट करोगे, निगेटिव में पढ़ोगे, उसको नो लगा के पढ़ोगे या नॉट, नेवर ऐसा कुछ लगा के पढ़ोगे, तो 100% वो स्टेटमेंट के अपोजिट शो करना चाहिए सर। तभी तो वो क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, इट इज ए स्ट्रांग एजम्पशन। जस्ट आप मेरे व्यू से क्या है, अपोजिट है, आप मेरे व्यू से क्या है, तो मुझे एकदम कॉन्ट्राडिक्ट करोगे आप, यस और नॉट, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब जस्ट अपोजिट। तो यदि मैंने किसी एजम्पशन को पूरा निगेटिव करके पढ़ा तो इट शुड कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट, पैसेज, पैसेज के अपोजिट बात कर रहा है वो, कॉन्ट्राडिक्ट यही होता है ना, इट शुड कॉन्ट्राडिक्ट द व्हाट, पैसेज। इज इट क्लियर? इट शुड कॉन्ट्राडिक्ट पैसेज, और उसको उल्टा करके पढ़ना, और आपको यदि लगेगा कि वो क्या है, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट, और इसकी पूरी चांस आ जाएगी क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट में यदि बोल दिया गया कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्ट, इट इज ना एक्सप्लिसिट एजम्पशन। और यदि बोल दिया गया व्हाट, कॉन्ट्राडिक्ट, फीलिंग नहीं आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन की फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये एजम्पशन नहीं है। अंडरस्टूड इट? हाँ, अभी तब करेंगे तो अभी तो फीलिंग आएगी। इज इट ओके? तो एजम्पशंस में अगेन हमने क्या बोला, व्हाट इज द एजम्पशंस? सपोज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने पैसेज ले लिया, उसमें आपके क्या एजम्पशंस दिख रहे हैं, उस एजम्पशन से अपोजिट पढ़ोगे तो उस पैसेज में नहीं दिखना चाहिए, फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है उसको पॉजिटिव पढ़ोगे तो ये है उसमें। यदि किसी पॉजिटिव को निगेटिव कर दोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी एजम्पशंस को आप निगेटिव करके पढ़ो, रीड इट निगेटिव, तो उस पैसेज में विजिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे तो मैं तो निगेटिव करके पढ़ रहा हूं उसी को, इसका मतलब वो पॉजिटिव है उसके अंदर, वो तो पॉजिटिव है ना, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और उसको जैसे निगेटिव करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उस पैसेज से बाहर। हमने तो डेलिबरेटली उसको निगेटिव बनाया ना, हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मेक निगेट द एजम्पशन, वी हैव टू निगेट द एजम्पशन। इज इट क्लियर? सो जैसे ही हम पैसेज को निगेट करेंगे, it should give us what, a strong contradictory, yes or not? और इसका मतलब वो strong assumption, वो strongly available है। Again दोबारा I'm coming, I said that assumption क्या होता है, ये स्टेल में assumptions are, I said that two types, explicit and implicit, और हमें किसको देखना है, explicit assumption which is available, yes or not? और ये क्या होता है, जैसे कभी आपने किसी को बोला, आप अपनी मदर को बोलते हो, योर मदर, यू से योर मदर, मदर आई लव यू,
तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो वो कन्वे कर देती है बैक ऑफ द हिडन, जो माइंड में आपको जो चल रहा है वो सडनली सारे आपके मदर को कन्वे हो गया। ऐसा ना हुआ ना? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? जो हिडन चीज है वो एज्यूम्ड है, ऐसा ना, वो पीछे, उस शब्द के पीछे छुपी हुई चीज है जिसको आप हजारों शब्दों में नहीं, आज तक सूरदास ने कृष्ण को लेकर चाहे जितने भी, आई सेड दैट दोज हु हैव रिटन अबाउट इट दे कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, दिस इज एक्सप्लिसिट वन। लेकिन उसके और उसी को आप अपोजिट बोलोगे तो वहां पे नजर नहीं आएगा, ऐसा ना। तो इसका मतलब वो अपोजिट वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग एजम्पशन है। अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई सेड दैट स्ट्रॉन्ग आइडिया हिडन बिहाइंड द पैसेज, स्ट्रॉन्ग आइडिया हिडन बिहाइंड द पैसेज। कई बार समझा चुका हूं, जैसे ही आप न्यूज़पेपर का हेडिंग पढ़ते हो आप एज्यूम करने लग जाते हो बहुत सारे आइडियाज, ऐसा ना। और जो न्यूज़पेपर के हेडिंग में पढ़ने के बाद मिलता है वो क्या होता है? एजम्पशन, स्ट्रॉन्ग एजम्पशन। और जो नहीं मिला वो वीक एजम्पशन, मिस इम्प्लिसिट। और जो मिल गया दैट इज आई सेड दैट एक्सप्लिसिट। इट इज क्लियर? देयर आफ्टर आई टॉक्ड अबाउट, जब आप पढ़ते रहें तो कैसा सोचे? जब भी आप 1 लाइन पढ़े, चाहे 2 लाइन पढ़े या पूरे लाइन पढ़ने के बाद, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 2 3 जब भी आपको मौका लगे तो आप लगो पढ़ो यस देयरफॉर हेंस सो। और देयरफॉर हेंस सो क्या बताता है? उससे रिलेटेड एज्यूम्ड, यस और नॉट, यस और नॉट। if the economic condition of India will be like this programs are running, then this will be like this, yes or not? Yes or not? Yes. If the economic inclusion, social inclusion, then it is all this inclusion will be there, then will be financial inclusion. Therefore, इसका मतलब hidden will be like this. तो hidden चीज क्या होती है? पैसेज पर डिपेंड करती है और उसको कैसे बताती है? with the help of therefore, with the help of hence, with the help of so. Yes or not? ये फीलिंग लिखते आना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? when we read the options in the question based on assumption, तो falsifiability के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? which is out of the context, yesterday we have been also saying, वो रिमूव करेंगे एंड देन हमें 2 मिल गया, 3 मिल गया, जो भी मिल गया। अब जो बच गया 2, यदि कोई नहीं बचा, एक ही बचा, तो वो तो हो गया एजम्पशन। यदि 2 बच गया तो हमें किसके बेसिस पे जाना है? यस टेल मी। और ऑल एनी ऑलवेज तो हम लोग जानते ही हैं, वो भी हम लोग देखकर फटाफट निकालते। जैसे ही मुझे ऑल, ऑलवेज, नेवर, नन काइंड ऑफ सेंटेंस वर्ड्स मिल जाए तुरंत मेरा दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए, यस समथिंग इज देयर। और जो एजम्पशन मिले उसको अपोजिट करके पढ़ना है। तो लेट अस गो फॉर द, आई सेड दैट assumption based आपके इस पेज पर, यहाँ पर इट इज अवेलेबल ऑन दिस पेज, सेकेंड पे है आफ्टर दैट। सबके पास है ना? एवरीवन हैज? I said option passage is like this, and what the passage is here, an innovative India will be inclusive as well as technologically advanced. An innovative India will be inclusive as well as technologically advanced, improving the lives of all Indians. An innovative India will be, I said that, inclusive. एक innovative India जहाँ पर innovation, technology, all these things will be there, startups will be there, will be inclusive, yes or not? तो उसके टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज फॉर द ऑल द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, yes or not? तो एवरीथिंग इज देयर। तो जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जितनी भी चीजें हैं, उससे हमें क्या करना है? एवरीथिंग्स को इंप्रूव करना है। देन इट मीन्स, आई सेड दैट, एज वेल एज इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव होगा। इसका मतलब पर्पस क्या होगा? यस टेल मी। इट इज फॉर ऑल पर्पस,
as well as technologically advanced, improving the